Hello students. In the last lecture, we discussed about what is a limited liability partnership, what are its features, that is characteristics. We also discussed various definitions. Among them, few definitions were pretty much important, that were about the name of the partners, about the name of the partnership firm, about, let's say, the financial year. Okay, we have seen that if any LLP gets incorporated 1st October onwards, then what will be the first financial year for that LLP? If it gets incorporated up to 30th September, then what will be the financial year? We also discussed as to who can become a partner in a limited liability partnership firm. Okay, individuals, other LLPs, foreign LLPs, companies. Okay, everybody can become a partner in a limited liability partnership firm. So far as individuals were concerned, there were certain limitations that a minor, a person who is of unsound mind, and a person who is otherwise disqualified by law cannot become a partner in a partnership firm. Okay, otherwise disqualified by law means a person who has been declared insolvent or a person who has applied to be declared as an insolvent person, a person who is an alien enemy, the one that you have already studied in the Indian Contract Act. Okay, these persons are not allowed to become a partner in a partnership firm. Then there was a discussion about minimum number of partners, that is 2. Maximum number, there is no limit. Then section 7, we at last discussed section 7 that talks about designated partners. Okay, so I discussed at length about the difference between a partner and a designated partner. Okay, and a designated partner is responsible for all the legal compliances of the LLP. In that, in the last lecture, we covered section 7, subsection 1. Okay, that every LLP must have at least 2 individuals who are designated partners. If in an LLP there are only 2 partners, then both the partners will be considered as designated partners. Out of the designated partner, minimum 1 partner should be a person resident in India. Okay, but for that, the condition, if a person wants to be a resident in India, that person needs to have a stay of at least 120 days in the previous financial year. Okay, it does not go as per the Income Tax Act, where the number of days are different. Over here, the number of days are 120. If you stay in India for 120 days, you will be considered a resident in India for the purpose of LLP only, not for the purpose of income tax, for the purpose of LLP. Now, from this lecture, we are going to start the discussion of next point, that is section 7, subsection 2, which says that if in the incorporation document, हम आगे ये पढ़ने वाले हैं कि incorporation document क्या है. ये टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद incorporation document का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है. तो incorporation document में अगर स्पेसिफाइड है कि हमारे टोटल 10 पार्टनर्स हैं, इन 10 पार्टनर्स में से ये 3 हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, ऐसा अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा है, तो ये 3 डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे. अगर कुछ भी न लिखा हो, है ना, इफ देयर इज नो मेंशन अबाउट डेजिग्नेटेड पार्टनर, देन ऑल पार्टनर्स विल बी कंसिडर्ड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर. ये कब की बात है?
जब हम एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते हैं तब की बात है ना। उसके बाद डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में चेंज हो सकता है। हम जब एलएलपी बना रहे हैं, उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उसको एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं, तब हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं विच इज नोन एज एलएलपी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ओके, अगर उसमें मेंशन है कि ये लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर कहलाए जाएंगे, तो वो 3 या 2, मिनिमम 2 या मिनिमम लेट्स से आप 4-5 कुछ भी रख सकते हो, पर एज पर एक्ट मिनिमम 2 लोगों को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना पड़ेगा। अगर उनका नाम स्पेसिफाइड है तो वो, न स्पेसिफाइड हो तो सारे के सारे पार्टनर्स को क्या माना जाएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा। उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड, यानी हर साल इसमें चेंज आ सकता है, आएगा ही ऐसा नहीं है, इट कैन बी देयर। ओके, तो अगर किसी पार्टनर को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है तो वो एलएलपी अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पार्टनर बन भी सकता है, मे बिकम। और अगर मान लो कि कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर है पर उसको अब डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं रहना है, ओके, तो वो मे सीज, मतलब अब से वो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं रहेगा। ये दोनों चीजें किसके अकॉर्डिंग होंगी, इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी अग्रीमेंट। फाइन, नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 कि अगर आप किसी भी इंडिविजुअल को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना चाहते हो तो आपको उसका प्रायर कंसेंट, प्रायर मतलब वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बने उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ऑब्टेन द कंसेंट। क्या कंसेंट होगा, अगर कोई भी एलएलपी मुझे डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना चाहती है तो मुझसे पूछना पड़ेगा कि आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए रेडी हो या नहीं। कंसेंट का मतलब है मैं उसको परमिट करता हूँ, उसकी परमिशन देता हूँ, अलाउ करता हूँ कि हाँ ठीक है आप मेरा नाम लिख सकते हो एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो अगर किसी दिन कोई एक इंसान जैसे मिस्टर पार्थ बिकम्स अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो अब एलएलपी की क्या जिम्मेदारी है, वो सेक्शन 4 में लिखा हुआ है, सॉरी सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि जिस दिन आप किसी को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाते हो तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर उस इंडिविजुअल के बारे में सारी जानकारी आपको रजिस्ट्रार को देनी है। कौन से रजिस्ट्रार को, ROF, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। जैसे कंपनी में हम ROC बोलते हैं, वैसा यहाँ पे बोलेंगे ROF। ओके, चलो, अगर किसी इंडिविजुअल को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना है तो ऑब्वियस है कि उसको जो भी कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन होता है कि वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, एनिमी नहीं होना चाहिए। दीज आर द कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि जैसे हम अपने लिए पैन कार्ड लेते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑब्टेन करते हैं, है ना, वैसे ही आपको अगर किसी एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है तो आपके पास DPIN होना चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, ऐसा ही अगर कोई इंसान कंपनी में डायरेक्टर बनता है तो उसके पास DIN होता है। ये दोनों नंबर में डिफरेंस है, ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये कहाँ पे यूज होगा, LLP में, ये यूज होता है कंपनी में। नीड टू बी केयरफुल विद दैट। ओके, कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है तो कंपनी के लिए CIN होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमें गवर्नमेंट से क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर ना। जैसे यहाँ पे सेक्शन लिखे हुए हैं 153 टू 159, वैसे ही DIN के सेक्शन 162 से स्टार्ट करके 167 तक जाते हैं। Okay, चलो बढ़ते हैं आगे। सो फार वी हैव सीन 6 सब सेक्शंस ऑफ सेक्शन 7। सेक्शन 7 में सबसेक्शन 1 था,
कि हमें डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाने पड़ेंगे। ओके, 2 में क्या लिखा हुआ था कि कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा इनकॉर्पोरेशन के वक्त। ओके, 3 में ये लिखा कि हमें अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है तो प्रायर कंसेंट होना चाहिए, बनने के बाद नहीं, बनने से पहले। नंबर 4, डेजिग्नेटेड पार्टनर की सारी डिटेल्स एलएलपी की जिम्मेदारी, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एलएलपी टू गिव all the details about designated partner to the registrar of firms within 30 days of appointment। अगर ये नहीं होगा, है ना, ये फुलफिल नहीं होगा तो पेनल्टीज लग सकती है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग सेक्शन 10 में। ओके, और सबसेक्शन 5 में लिखा कि कोई भी एक इंडिविजुअल है तो वो एलिजिबल होना चाहिए, कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। एंड एट लास्ट वी डिस्कस्ड अबाउट designated partner identification number। Okay, moving forward to section 8, liabilities of the designated partner। So unless expressly provided otherwise in this act, माने एक्ट में अगर इसके अगेंस्ट कुछ न लिखा हो तो a designated partner shall be responsible for doing all act, matters and things as are required to be done by the LLP। पर किसके रिलेशन में? In respect of compliance of provisions of this act। ओके, LLP के एक्ट में जो भी कंप्लायंसेस करने हैं, क्या क्या कंप्लायंसेस करने हैं, लाइक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, रिटर्न, स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट, है ना, ये सारी चीजें जो करनी है वो कौन करेगा? इट विल बी डन बाय ऑल दी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। एंड अगर कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर अपना काम करने में कैपेबल नहीं है या उसने कोई गलती की है, डिले किया है, देन दैट डेजिग्नेटेड पार्टनर विल बी लायबल टू ऑल द पेनल्टीज, है ना। तो ये पेनल्टी के बारे में आगे डिस्कशन है, पहले हम लोग सेक्शन 10 डिस्कस करेंगे पेनल्टी वाला, देन वील कम बैक टू सेक्शन 9। ओके, तो क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी। इफ द एलएलपी contravenes the provision of subsection 1, subsection 1 में क्या लिखा हुआ था कि कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए और उनमें से कम एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ओके, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स गिवन इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ओके, तो हर पार्टनर को ध्यान रखना, डेजिग्नेटेड पार्टनर को नहीं, एवरी पार्टनर शेल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ ₹10,000। तो एवरी पार्टनर के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर भी आ गए, तो अगर किसी फर्म में 7 पार्टनर है, 8 पार्टनर है, तो 8 पार्टनर्स को 10,000 रुपए पेनल्टी पे करना पड़ेगा। और अगर ये कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है तो ₹100 पर डे। ओके, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹1,00,000। तो ये पार्टनर के ऊपर पेनल्टी कम से कम 10,000 रुपए, फिर 100 पर डे कंटिन्यू, पर मैक्सिमम कितना? 1,00,000। ओके, यही पेनल्टी एलएलपी के लिए कितना है? तो फॉर एलएलपी द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज ₹50,000। सॉरी, मैक्सिमम पेनल्टी एलएलपी के लिए 1,00,000 और पार्टनर्स के लिए 50,000। आई मेड अ मिस्टेक। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इफ द एलएलपी contravenes the provision of subsection 4, सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ था कंसेंट के बारे में कि आपको कंसेंट फाइल करना है कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर। अगेन एलएलपी और डेजिग्नेटेड पार्टनर दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। कितना पेनल्टी होगा दोनों के लिए? 5,000, कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट 1,000, मैक्सिमम पेनल्टी एलएलपी का 50,000
और डेजिग्नेटेड पार्टनर का 25,000। ध्यान रखना है आपको, है ना। ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी पार्टनर के लिए 50,000, यहाँ पे उसका आधा हो गया। और यहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख था, उसकी जगह यहाँ पे 50,000। ओके, यहाँ पे मिनिमम 10,000 था, यहाँ पे मिनिमम 5,000। ऊपर से सब कुछ आधा आधा है, खाली वो 100 पर डे है, वो सेम टू सेम। तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी, विल बी इजी फॉर यू। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इफ द एलएलपी contravenes the provision of subsection 5 of section 9। ओके, तो सबसेक्शन 5 क्या था, आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, है ना। अगर वो कंडीशन फुलफिल ना हुई तो मिनिमम, ये आगे सेम टू सेम पेनल्टी है, मिनिमम पेनल्टी 10,000, 100 पर डे कंटिन्यूइंग। ओके, 1 लाख मैक्सिमम एलएलपी के लिए, और 50,000 मैक्सिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए। तो 3 पेनल्टीज हैं, सबसेक्शन 1, 2 एंड 3 ऑफ सेक्शन 10। वापस जाते हैं सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 क्या कहता है वो देखते हैं। चेंजेस इन द डेजिग्नेटेड पार्टनर। ओके, तो चेंजेस में हमने ऊपर एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2। ओके, एन एलएलपी मे अपॉइंट अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, कितने दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ वैकेंसी। कोई रिटायर होता है या कोई किसी को हम रिमूव करते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, और उसकी वजह से अगर एलएलपी में किसी भी तरह का वैकेंसी, वैकेंसी का मतलब ब्लैंक जगह अराइज होती है। ओके, तो हमें क्या करना है, 30 डेज के अंदर अंदर वो वैकेंसी फिल करना है। ओके, और अगर हम 30 डेज में, मैंने ओके मिस्टर पार्थ थे, है ना, उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया कि मैं अब इस फर्म में से, मतलब फर्म में रहूंगा बट डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं रहूंगा। आई डू नॉट वांट टू एनी मोर कंटिन्यू एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो जिस दिन वो रिटायर होते हैं वहां से लेके 30 डेज के अंदर अंदर आपको वैकेंसी फिल करना है। बट अगर आप वो वैकेंसी फिल नहीं कर पाए, इफ यू आर नॉट एबल टू फिल द वैकेंसी, देन व्हाट, देन मिस्टर पार्थ will continue as a designated partner till the vacancy is filled। वैकेंसी को जब तक फिलअप नहीं किया जाएगा तब तक मिस्टर पार्थी एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर कंटिन्यू रहेंगे। तो सो फार वी हैव सीन 4 sections today, 7, 8, 9 and 10 all talk about designated partner only। 7 में लिखा डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाने पड़ेंगे, मिनिमम 2 होने चाहिए, कैसे वो लोग अपॉइंट होते हैं, उनका कंसेंट लेना पड़ेगा, कंसेंट को फाइल करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। ओके, और डीपीआईएन डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा। फिर 10 में ये पढ़ा के अगर ये कंडीशंस फुलफिल करने में किसी भी तरह का ब्रीच होता है तो एलएलपी को भी फाइन भरना पड़ेगा और पार्टनर को भी फाइन भरना पड़ेगा। कुछ मिनिमम अमाउंट है, कुछ पर डे अमाउंट है, कुछ मैक्सिमम अमाउंट है। इज इट ओके? और एट लास्ट ये देखा कि अगर किसी भी तरह का वैकेंसी अराइज होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर की जगह पे, तो वो कैसे फिल करना है 30 डेज के अंदर। अगर फिल ना हुआ तो सिचुएशन क्या होगी। ओके, just a second, I think I have made a mistake over here। मिस्टर पार्थ कब कंटिन्यू करेंगे, अगर उनके अलावा कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो। सॉरी, अगर हम वैकेंसी फिल नहीं कर पाए तो
देयर आर नो अदर designated partners, or we can say the number of designated partners are below 2. अगर ऐसी सिचुएशन है तो मिस्टर पार्थ विल कंटिन्यू। आगे बढ़ते हैं। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, सेक्शन 11। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। जब भी हम एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो व्हाट वी नीड इज इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ओके, वो कैसे बनता है, कौन करेगा, उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिस्कशन है। तो सबसे पहला है सबसेक्शन 1, फॉर अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप टू बी इनकॉर्पोरेटेड 2 और मोर पर्सन्स। ओके, तो ऑब्वियस है पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए, जिन्होंने क्या डिसाइड किया है, दे हैव कम टुगेदर फॉर डूइंग अ लॉफुल बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, शेल सब्सक्राइब देयर नेम टू एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। जैसे हम लोग किसी भी कंपनी में एमओए बनाते हैं और एमओए में सब्सक्राइबर्स का नाम होता है प्रमोटर्स। कंपनी की बात करेंगे तो उसमें किसका नाम होगा, प्रमोटर्स। यहाँ पे उनको पार्टनर्स कहा जाएगा। उनको इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपना नाम सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा। दे हैव टू मेंशन देयर नेम, कि हम 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग साथ मिलके एक लॉफुल बिजनेस करना चाहते हैं, पर उस बिजनेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो, या जो बिजनेस का फॉर्मेट होगा, दैट विल बी एलएलपी। ओके, यही इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, फीस के साथ आरओएफ को सबमिट करना पड़ेगा। मैंने अगर मैं अपना बिजनेस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एस्टेब्लिश करना चाहता हूं, तो उस स्टेट के जो आरओएफ होंगे, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, है ना, वहां पे मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे। नाउ इट इज ऑल द थिंग्स आर डन ऑनलाइन, है ना, हमें कहीं पे फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाने की जरूरत नहीं होती। ओके, और तीसरा जो पॉइंट है सबसेक्शन 1 में, सेक्शन सब क्लॉज ए बी पढ़ा, अभी सी क्लॉज क्या कहता है कि हमें इसके साथ साथ एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। माने एक चीज है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, तो उसके साथ क्या देना पड़ेगा, वी हैव टू गिव अ स्टेटमेंट, है ना। इस स्टेटमेंट में क्या लिखना है और ये स्टेटमेंट कौन देगा। ओके, तो या तो कोई एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, उनमें से कोई भी एक इंसान जो इस एलएलपी को बनाने के काम में पार्टनर्स को हेल्प कर रहा है। तो बट ऑब्वियस है ना, जो पार्टनर्स हैं वो इतने नॉलेजेबल नहीं होते हैं कि उनको पता है कि हमको एलएलपी बनाना है, तो उसका जो लीगल प्रोसेस है वो कौन करेगा, कोई भी एक प्रोफेशनल इंसान, है ना। इट इज आइदर एडवोकेट, सीए, सीएस, सीएमए, कोई भी करेगा। ओके, एंड बाय एनीवन, इधर एंड लिखा हुआ है, मतलब इन लोगों की तो जरूरत है, उसके साथ साथ यहाँ पे जिसका नाम लिखा होगा उनमें से कोई भी एक इंसान, वो भी क्या देगा, स्टेटमेंट। थोड़ा ध्यान रखना, स्टेटमेंट कौन देगा, या तो कोई एडवोकेट, सीएस, सीए या सीएमए, उसके साथ साथ कौन देगा, सब्सक्राइबर। चलो, स्टेटमेंट देंगे पर लिखेंगे क्या, कि हमको एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो भी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज करने जैसी थी वो हमने सब कर दिया है, हैव बीन कंप्लाइड विथ। मतलब इतना श्योरिटी देना पड़ेगा, इतना गारंटी देना पड़ेगा कि एक एलएलपी बनाने के लिए हमें जो कुछ भी करने जैसा लगा, जो भी एक्ट में लिखा हुआ है वो सब हमने किया है। ओके, हैव बीन कंप्लाइड विथ। ओके, चलो अब इससे आगे सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 में पढ़ेंगे, द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शेल बी इन द फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जैसा एक्ट में लिखा होगा वैसा बनाना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, नेम ऑफ एलएलपी, एलएलपी क्या बिजनेस करने वाला है,
उसका एड्रेस क्या है, जो भी इसके पार्टनर्स हैं, है ना, उनका नेम एंड एड्रेस, जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनका नेम एंड एड्रेस, और सच अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। सिंपल याद रखेंगे, एलएलपी का नाम, एलएलपी का बिजनेस, एलएलपी का एड्रेस, ये तीनों एलएलपी का होगा। ओके, फिर पार्टनर का नाम और पता, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम और पता, और बाकी जो भी डिटेल्स एक्ट में लिखी होंगी वो सारी चीजें हमें इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में देनी पड़ेगी। तो वो तो बात ऑब्वियस है, जैसे हम लोग कभी कंपनी का एमओए बनाते हैं तो उसमें कंपनी का नाम लिखा होता है, कंपनी किस ऑब्जेक्ट के लिए बना है वो लिखा होता है, तो वो हो गया प्रपोज्ड बिजनेस। ओके, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का कैपिटल कितना होगा, कंपनी की लायबिलिटी कैसी होगी, जैसे हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी होगी, और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, तो ये सब्सक्राइबर हो गए। उसके जैसा ही ये थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। एलएलपी का नाम, एलएलपी का रजिस्टर्ड एड्रेस, पार्टनर्स का नाम और पता, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम और पता, और बाकी जो भी चीजें जो एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड हैं वो हमें इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ देनी पड़ेगी। तीसरा, अगर कोई भी इंसान, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, तो स्टेटमेंट किसने दिया था, एडवोकेट, सीए, सीएस या सीएम, और उनके साथ साथ कोई भी एक सब्सक्राइबर, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। पर अगर ये स्टेटमेंट गलत है ऐसा उनको पता है, या तो ये सच है, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, मतलब उनको ये श्योर नहीं है कि ये सच है, या तो ये पता है कंफर्म कि मैंने जो बोला है वो गलत है, मैंने झूठ बोला है, मैंने कोई टाइप का चीटिंग किया है, फ्रॉड किया है। ओके, देन दैट पर्सन, उसको कितना पनिशमेंट होगा, 2 साल तक का जेल, अप टू 2 इयर्स, और कम से कम 10,000, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए तक का फाइन होगा, अगर आपने जानबूझ के कोई गलत स्टेटमेंट दिया, या कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसकी सच्चाई के बारे में आपको श्योरिटी ना हो, आपने बोलने के लिए बोल दिया पर आपको श्योर नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, तो इन दैट केस क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जिन जिन लोगों ने भी स्टेटमेंट दिया है उनको कम से ज्यादा 2 साल तक का जेल, कम से कम 10,000 का पेनल्टी, विच कैन एक्सटेंड टू 5 years. Now we'll be moving towards another section, section 12, which talks about incorporation by registration. Okay, let's see. When the requirements imposed by clause B and C, clause B में क्या लिखा हुआ था, incorporation जब भी हम करते हैं तो हमें फीस भरनी पड़ती है। क्लॉज सी में क्या लिखा है, स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। ओके, ये सारी चीजें आपने फुलफिल कर दी है, और ये सारा डेटा हमने दे दिया ROF को, किसको दे दिया, वी हैव गिवन ऑल द डेटा टू ROF। ओके, तो रजिस्ट्रार, अनलेस द रिक्वायरमेंट्स इम्पोज्ड बाय क्लॉज ए, क्लॉज ए में लिखा था इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ओके, मतलब अगर वो फुलफिल नहीं हुई है तो अलग बात है, बट अगर वो फुलफिल हो गया, इफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन फुलफिल्ड, कंप्लाइड, तो वो हमने जिस दिन एप्लीकेशन दिया है ROF को कि हमें अपना LLP रजिस्टर करवाना है, उसके 14 डेज के अंदर अंदर, 14 दिन के अंदर अंदर वो क्या कर देगा, हमारे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को क्या कर देगा, रजिस्टर। ओके, एंड गिव अ सर्टिफिकेट, जैसे कंपनी बनाते हैं ना तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, वैसा LLP बनाया तो भी क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि हम ऐसा कोई LLP बना है, सर्टिफिकेट दे देगा। चलो, द रजिस्ट्रार मे एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर क्लॉज सी, क्लॉज सी में स्टेटमेंट दिया था ना कि जो भी करना था वो हम कर चुके, उसको वो सफिशिएंट एविडेंस, मतलब वो डाउट नहीं करेगा। LLP का जो रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं, ROF में जो लोग बैठे होंगे, वो हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ चलेंगे कि इसमें किसी भी तरह का फ्रॉड या चीटिंग नहीं है,
जिसने भी स्टेटमेंट दिया है वो सोच समझ के दिया होगा, वो बट ऑब्वियस है ना, क्योंकि उनका डिग्री का सवाल है, उनके रेपुटेशन का सवाल है, तो कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं देगा। ओके, जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा उस पे आरओएफ का ऑफिशियल सील होगा, और जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिला, वो कंक्लूसिव एविडेंस है। कंक्लूसिव का मतलब होता है फाइनल एविडेंस, मतलब ऐसा कोई भी एविडेंस जिसके बाद और कोई एविडेंस देने की जरूरत ना पड़े। इट्स अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट एलएलपी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। ओके, तो सेक्शन 7 में देखा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में, उसके बाद 8 में देखा, 9 में देखा कि अगर वैकेंसी आता है तो क्या होगा, वैकेंसी फुलफिल नहीं हुआ तो क्या होगा। 10 में पेनल्टीज के बारे में देखा, और 11 में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट, सब्सक्राइबर, उसमें कौन पार्टनर बनेगा, कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा, एलएलपी का नाम क्या होगा, उसका प्रपोज बिजनेस क्या होगा, उसके बारे में पढ़ा। स्टेटमेंट में ये लिखना है कि जो भी एलएलपी एक्ट में लिखी हुई कंडीशन है उसको हमने फुलफिल किया है। ओके, आरओएफ देखेगा सारी चीजें, अगर आरओएफ सेटिस्फाइड है तो वो आपको आपकी एप्लीकेशन के 14 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगी। जैसे ही आपके पास सर्टिफिकेट आ जाए, सर्टिफिकेट के ऊपर ऑफिशियल सील होना चाहिए, ये आपको देखना है, तो वो एक फाइनल एविडेंस माना जाएगा कि आपने हर तरह की फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डे इज रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंजेस देयरइन। तो ऑब्वियस है, हमने आगे देखा था कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में हमें एलएलपी का नाम और उसका पता लिखना पड़ेगा। वो क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि अगर किसी को भी एलएलपी के साथ किसी तरह का कम्युनिकेशन करना है, कोई नोटिस भेजना है, तो वो उस जगह पे लिख के आप भेज सकते हो। ओके, एलएलपी को किसी को किसी तरह का नोटिस भेजना है, किसी तरह का कम्युनिकेशन करना है, तो वो भी भेज सकते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? वी नीड टू हैव अ फिजिकल एड्रेस। वर्चुअल नहीं चलेगा, ईमेल आईडी दे दिया तो चलेगा, ऐसा नहीं। वी नीड टू हैव अ फिजिकल एड्रेस, कोई एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे एलएलपी रजिस्टर्ड हो। ओके, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलएलपी को डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, किसी पार्टनर को भेज सकते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर को भेज सकते हैं, है ना। वी कैन सेंड ऑल द documents by sending it by post. Okay, कहाँ पे भेजेंगे? एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी। चलो, अगर एलएलपी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहे, कर सकते हैं, यस। ओके, दे आर अलाउड टू डू सो, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। मतलब आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। यू हैव टू इन्फॉर्म टू द आरओएफ कि हम पहले यहाँ से बिजनेस करते थे, अब हमने हमारा, मतलब मे भी ऐसा हो सकता है कि पहले हमने जब एलएलपी स्टार्ट किया हो तब हमारा प्रीमाइसेस रेंटेड, हमने भाड़े पे जगह ली। कुछ साल बिजनेस करने के बाद हम खुद अपना जगह परचेस करने के लिए कैपेबल हैं, देन व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी विल चेंज द प्लेस एंड वी विल इन्फॉर्म टू द आरओएफ। और जब तक इन्फॉर्म नहीं करेंगे तब तक पुराना प्लेस ही आपका रजिस्टर्ड ऑफिस माना जाए। इन केस आप यहाँ पे किसी तरह का कॉन्ट्रावेंशन करते हो, तो कम से कम 500 रुपये पर डे का पेनल्टी, विच इज मैक्सिमम 50,000। यहाँ पे पेनल्टी किसको लगेगा वो ध्यान रखना है, एलएलपी एंड एवरी पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं, एवरी पार्टनर, यानी जो 10 पार्टनर है सबको 500 रुपये पर डे का पेनल्टी पे करना पड़ेगा। ओके, हमने जैसे ही हमारा एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर दिया, आरओएफ ने हमको सर्टिफिकेट दे दिया, 14 दिन के अंदर अंदर हमारा नाम रजिस्टर में आ गया, उस दिन से ध्यान रखना, उस दिन से आप एक क्या बनोगे? सेपरेट लीगल एंटिटी। और कोई एक नॉर्मल इंसान जो सारे काम कर सकता है, तो सारे काम करने के लिए एलएलपी क्या हो जाएगा? कैपेबल, लाइक टू सू एंड बीइंग सूड, माने कोई आपके ऊपर केस कर सकता है, और या तो
आप भी किसी के ऊपर केस कर सकते हो। किसी भी तरह से प्रॉपर्टी अक्वायर करना, उसको ओन करना, होल्ड करना, डेवलप करना, बेचना, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, ओके, उसका अपना कॉमन सील होना चाहिए। एंड मतलब उसको अगर लगे कि हाँ कॉमन सील रखना है तो अगेन नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी नहीं। और हर वो तरह का काम करना जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल कर सकता है, एक्सेप्ट गेटिंग मैरिड और गेटिंग डिवोर्स्ड, वो नहीं कर सकते। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट 3 सेक्शंस ऑफ टुडे। नेम, हर एक एलएलपी का अपना नाम होना चाहिए। एवरी एलएलपी शुड हैव इट्स नेम। ओके, और उसके आखिरी मतलब नाम खत्म होने के बाद क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू हैव प्रीफिक्स। जैसे किसी कंपनी के पीछे लिखा होता है लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, वैसा एलएलपी के पीछे प्रीफिक्स होना चाहिए। लिमिटेड लायबिलिटी के पीछे एलएलपी, जैसे मिस्टर मोहन, मिस्टर ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, मोहन एलएलपी ऐसा भी चलेगा, दिस कैन बी अ नेम। चलो, ऐसा कोई भी नाम आप नहीं रख सकते, इसमें बहुत सारे कंडीशन है, मैंने थोड़े ही प्रिस्क्राइब किए हैं। पर अनडिजायरेबल, ऑब्जेक्शनेबल, सिमिलर, ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एलएलपी का नाम किसी और एलएलपी जैसा तो नहीं होना चाहिए, किसी और कंपनी जैसा भी नहीं होना चाहिए, या किसी रजिस्टर्ड पर्सन के ट्रेडमार्क जैसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो लेट्स से आई एम हैविंग एन इंस्टीट्यूट, मेरा कोई एक इंस्टीट्यूट है और वो जिस नाम से रजिस्टर्ड है, आई एम नॉट सेइंग द नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूट बट यस, वो किसी एक नाम से रजिस्टर्ड है और वो ट्रेडमार्क है। जैसे आप आपका अपना क्लास डीएम के प्रो स्टडीज, तो वो एक ट्रेडमार्क है। तो क्या कोई भी एलएलपी उस नाम से बन सकता है? द आंसर इज नो। ओके, तो आपका एलएलपी का नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरह का अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी नाम नहीं रख सकते हो जिससे ऐसा लगे कि ये एलएलपी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड है। देन अगर आप अपनी एलएलपी का नाम रखते हो तो वो किसी और एलएलपी जैसा नहीं, किसी कंपनी जैसा नहीं, या किसी कंपनी के रजिस्टर्ड या किसी भी इंडिविजुअल के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जैसा नहीं होना चाहिए। ओके, चलो, रिजर्वेशन ऑफ नेम। हम एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले, मतलब हम सेक्शन 11 करें ना, उससे पहले सेक्शन 16 करना पड़ेगा। क्योंकि 11 में हमने ऐसा पढ़ा था कि हमें इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर एलएलपी का नाम लिखना पड़ेगा। पर कंडीशन ये भी है ना कि नाम किसी और के जैसा नहीं होना चाहिए। अभी मान लो कि हमने नाम लिख दिया और वो नाम किसी और कंपनी जैसा, एलएलपी जैसा हो गया, ट्रेडमार्क जैसा हो गया, तो वापस से प्रोसेस करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी हम आरओसी की वेबसाइट पे जाते हैं, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले हमको ऐसा बोलेंगे कि आप अपना नाम रिजर्व करवा लो। ना, नाम रिजर्व करवाना मतलब क्या है कि हम अप्लाई करेंगे कि हम ये नाम से अपना एलएलपी, 3 नाम अप्लाई करेंगे, इस नाम से हम हमारा एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। तो आप हमें देख, जैसे हम अपना जीमेल आईडी बनाते हैं, है ना, मेल आईडी बनाते हैं, तो हमें सजेशंस आता है कि आप ये नाम रख सकते हो, ये नाम नहीं रख सकते हो। वैसा गवर्नमेंट भी आपको हेल्प करेगा कि आप कौन सा नाम रख सकते हो, कौन सा नाम नहीं रख सकते। इज इट ओके? जैसे ही आपने नाम के लिए अप्लाई किया, मान लो कि वो नाम अवेलेबल हो गया, ओके, द नेम इज अवेलेबल, इन दैट केस क्या होगा कि आपको कुछ फीस भरनी पड़ेगी और वो नाम 20 दिन तक रिजर्व रखा जाएगा। मतलब आपके अलावा कोई और नाम उसको यूज नहीं कर सकता। रिजर्वेशन ऑफ अ नेम। इज इट ओके? सेक्शन 16 में आपको पहले अप्लाई करना है, कुछ अलग अलग नाम के लिए मल्टीपल ऑप्शंस देने हैं, उसमें गवर्नमेंट आपको बताएगा कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं है। नहीं होगा तो फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, और है तो बोलेंगे कि ये नाम अवेलेबल है और हम आपके लिए ये नाम रिजर्व रखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब
fix. Okay. Right. The period is not 20 days, it is 3 months. इसमें वापस आगे ऐसी कंडीशंस हैं कि 3 महीने में अगर हम बाकी की प्रोसेस कंप्लीट ना कर पाए, क्योंकि पहला प्रोसेस नाम का किया और नाम के बाद भी हमको बहुत सारी प्रोसेस आगे करनी पड़ेगी, तब जाके एलएलपी इनकॉर्पोरेट होगा। तो ये काम अगर 3 महीने में हो गया, जो मोस्टली हो जाता है, बट अगर नहीं हुआ तो वापस से नाम हमारा अनरिजर्व्ड हो जाएगा। पहले रिजर्व था, उसकी जगह क्या हो जाएगा, अनरिजर्व। ऐसा न करना हो तो हम पैसा भर के 20 डेज का एक्सटेंशन ले सकते। तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यस वी कैन डू दैट। इज इट ओके? लास्ट नेक्स्ट जो सेक्शन है विच विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि अगर आपने कोई एक नाम के लिए अप्लाई किया था और गलती से वो नाम आपको अलॉट हो गया, गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था, तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इन्फॉर्म करेगी कि हमने गलती से ये नाम आपको अलॉट कर दिया है, आप प्लीज अपना नाम बदल दीजिए। और अगर मान लो कि गवर्नमेंट के ध्यान में न आए, बट जिसका एलएलपी था उसको पता चले कि यार मेरा एलएलपी पहले रजिस्टर्ड है, मैंने मोहन एलएलपी करके पहले रजिस्टर्ड एलएलपी बना दिया है, अब कोई और फिर से मोहन के नाम पे एलएलपी बना रहा है या तो बना दिया है, तो वो गवर्नमेंट को कंप्लेन करेगा कि देखो इन्होंने मेरे नाम पे एलएलपी बनाया है, मेरा एलएलपी पहले बना हुआ है, उन्होंने बाद में बनाया है, तो आप उनको रिक्वेस्ट करो कि वो अपने एलएलपी का नाम बदले। उसके लिए आपको कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है, और अगर नहीं करोगे तो कुछ पेनल्टीज है। ओके, दैट विल बी डिस्कसिंग इन दी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।